कर दें, आप लोगों को भी इंतजार। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है जिसमें मैं हमारे साथी महासचिव यहाँ के प्रभारी हरीश चौधरी जी, हमारे गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चौदंकर जी, हमारे यूथ कांग्रेस के शेर श्रीनिवास जी और मेरे साथी मनोज त्यागी जी और भूपेंद्र भूरा जी का स्वागत करता हूँ। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 10 साल पंजाब के एक बेटे डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश पर प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने सेवा की देश की। उसके बाद जो उनको बदनाम करने की साजिश लोगों ने रची, शायद ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस साजिश का कभी जवाब दिया हो, वो शांत रहे। लेकिन आज जो वीडियो आपके सामने हम ला रहे हैं उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की पीड़ा आपको दिखाई देगी। उन्होंने आज पहली बार पिछले 15 साल में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे आपको जवाब मिल जाएगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने साजिश रची डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ। और इतने पढ़े लिखे अर्थशास्त्री समझदार व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी जब उनके लिए इस तरह के शब्द या तो नरेंद्र मोदी जी ने इस्तेमाल किए या जो दिल्ली वाली पार्टी है उन्होंने इस्तेमाल किए। हरीश जी, मैं आपको चाहता हूं कि आगे इसको आप बढ़ाएं। तो पहले हम वीडियो चला देते हैं, फिर प्रेस वार्ता आगे बढ़ाते हैं। प्यारे पंजाब वासियों, भारत आज एक अहम मोड़ ते खड़ा है। मेरी बड़ी इच्छा सी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ पूरी तरह फेल साबित हुई है। चीनी फौजी पिछले 1 साल तो साड़ी पवित्र धरती ते बैठे हैं, पर इस पूरे मामले ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। देश में एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के नेता हैं, जिनके सोच, जिनके सिद्धांत और जिनके किए हुए काम पूरा देश ही नहीं दुनिया जानती। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उनके नेता है और वो सीधी राजनीति में विश्वास नहीं रखते। षड्यंत्र, प्रोपेगेंडा, विवाद, बदनाम करना और बंटवारा करना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल का कार्यकाल भारत के लिए इतिहास में सबसे स्वर्णिम काल में से एक काल के संदर्भ में याद रखा जाएगा। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की 111 दिन का कार्यकाल पंजाब के इतिहास के अंदर एक स्वर्णिम काल के तौर पर याद रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी सरकार की ताकत आम लोगों के लिए वो ताकत का उपयोग करती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी व उनकी बी टीम सरकार की ताकत आम जन के लिए इस्तेमाल नहीं करती। वो ताकत प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल करती है, वो ताकत बंटवारे में इस्तेमाल करती है, वो ताकत कॉर्पोरेट्स और मजबूत लोगों के लिए इस्तेमाल करती है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी 2 बी टीम आम आदमी पार्टी और अकाली दल के माध्यम से यहाँ
पंजाब की धरती पर अपनी सियासत ताकत को बढ़ाने के प्रयास कर रही। पंजाब के लोग बहुत जागरूक हैं, पंजाब के लोग बहुत सतर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रदेशों के अंदर और केंद्र के अंदर जो प्रयास कर चुकी है, वो 20 तारीख को और नतीजे के तौर पर 10 तारीख को अगले महीने की पूरी देश और दुनिया को साफ संदेश मिल जाएगा। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता सार्वजनिक तौर पर और आम आदमी पार्टी के नेता सार्वजनिक तौर के ऊपर कई दफे इस बात को तायीद कर चुके हैं। नितिन गडकरी जी ने गोवा में इस बात को तायीद किया कि आम आदमी पार्टी गोवा में चुनाव लड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए लड़ रही है। गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन, पूरा चुनाव कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए, इसमें लड़ा गया। कृषि बिल के संदर्भ में पहले ए टीम तीनों बिल लेकर आती है। ए टीम के साथ बी टीम, पहले अकाली दल उसका समर्थन करती है, फिर दूसरी बी टीम आम आदमी पार्टी उन्हीं विधायक में से एक को विधानसभा के अंदर पास करती है। भारतीय जनता पार्टी जो ए टीम है वो कहती है कि 50 किलोमीटर पंजाब के बॉर्डर को बीएसएफ में दिया जाए, और उन्हीं की बी टीम के नेता भगवत मान जी 2 दिन पहले कहते हैं हाँ, वो 50 किलोमीटर देने से पंजाब का भला होगा। क्योंकि पहले तो उनकी खुद की पार्टी ने विधानसभा में भी इसका विरोध किया, पर जो ए टीम के मुखिया ने जो तय कर लिया, वो बी टीम को यू टर्न करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को जब यहां पंजाब में सियासत के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद से गरिमापूर्ण कोई पद नहीं होता, और वो व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में संस्था है। मनमोहन सिंह जी उस संस्था के संदर्भ में एक आदर्श व्यक्तित्व रहे, नेतृत्व उन्होंने दिया, पर उस गरिमापूर्ण पद को की गरिमा का भी उन्होंने इस्तेमाल किया सियासत करने के लिए। और यहां पंजाब में यात्रा आज तक 7 सालों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने तय यात्रा में 120 किलोमीटर की यात्रा बदलकर और रोड से आज तक तय नहीं करी। क्या मंशा थी? मंशा ये थी कि पंजाब के अंदर किसी भी प्रकार से अशांति हुई और पंजाब के लोगों को ये बात एहसास कराई कि ये अशांति कांग्रेस के सरकार के कारण हुई। उत्तराखंड के अंदर मौसम खराब हुआ, इन चुनावों के अंदर वर्चुअल रैली, और वर्चुअल रैली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रद्द की गई। जो वर्चुअल रैली मौसम खराबी के कारण रद्द उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि वहां उनकी सरकार थी और यहां पंजाबियों की सरकार थी। उन पंजाबियों की सरकार के अंदर कैसे विवाद किया जाए, ए टीम आगे ये विवाद करती है और बी टीम आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करती है। वो क्या चाहती थी? पंजाब में अशांति करना। वो क्या चाहती थी? कि उस दिन गोलियां चले। ये चरणजीत सिंह चन्नी, इन्होंने गोलियां क्या, लाठियां क्या, धक्के भी नहीं पंजाब के किसी व्यक्ति को दी। फिर बी टीम और ए टीम के एक ईश्वर, ये पंजाब है। मैं ए और बी टीम को आज बताना चाहता हूं, फिर याद दिलाना चाहता हूं, बहुत ताकतों ने पंजाब को
बांटने की कोशिश करी, पंजाबी कभी बटे नहीं। पूरी दुनिया पर राज करने की जिनका मकसद था, वो भी पंजाब में आकर उनके रथ थम नहीं गए, उखड़ गई। आज सियासत किस बात की? वोटों के लेने के लिए? यहां आकर इस बात को हिंदू और सिख, भारतीय जनता पार्टी की वही बात की हिंदू डरे हुए हैं, और उसी बात को तायीद करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी, ये पंजाब है, आपका गृह प्रदेश हरियाणा के अंदर भी लोग आपको जानते हैं। आपने वहां भी प्रयास किया बी टीम के तौर पर जब आपको लगा कि नहीं, ए टीम को नुकसान हो रहा है, तो आपने सब अपने उम्मीदवार को विड्रॉ कर कर उनकी जमानतें जब्त करवाई। आपके गृह प्रदेश के अंदर आज सबसे ज्यादा किसी भी इंसान को अगर लगाव होता है तो अपने गांव से, अपने जिले से, अपने राज्य से लगाव होता है। वहां तो आपने अपने ए टीम को फायदा दिलाने के लिए अपने खुद की पार्टी की प्रतिष्ठा से सौदा किया, और यहां जब आपको लग रहा है कि ए और बी टीम दोनों को फायदा हो, तो एक अलग मुखट्टा। तमाम सहयोगी बड़े ईमानदारी के आप दावे करते हो, डिफेमेशन केस के दावे करते हो। आपके खुद के सहयोगी, फाउंडर सहयोगी प्रशांत भूषण ने जो दिल्ली के अंदर हो रहा है भ्रष्टाचार, उसका उजागर किया, और आपने विड्रॉ तक किया। कुछ जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं। आपके खुद के फाउंडर जो मेंबर्स थे, जो पहले ए और बी टीम अलग तौर पर दिख रही थी, वो कोई तो वापस ए टीम में चले गए। किरण बेदी जी, वीके सिंह जी, तमाम लोग ए और बी टीम के अंदर एक ही मकसद से कि सियासत के तौर पर हम लोग आपस में ये खेल खेले। ये पंजाब अच्छी तरह से जानता है। आप लोग पंजाब के अंदर सियासत करना चाहते, आपने आरोप लगाया गवर्नर के पास जाकर कि जांच होनी चाहिए। हाँ, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है जांच होने के लिए। उस जांच का जवाब भी आ गया। बिना तत्व के आधार के ऊपर आपने बहुत आरोप लगाए, ईडी के संदर्भ में आरोप लगाए। क्या सच्चाई है पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, चलो ऑल पार्टी डेलीगेशन हम लोग गवर्नर के पास चले, इलेक्शन कमीशन के पास चले, जांच के लिए चले, कुमार विश्वास की इस बात की जांच के लिए चले। मैं सार्वजनिक तौर के ऊपर आपको यह निवेदन करता हूं कि सभी पार्टी मिलकर कुमार विश्वास की, एक नौजवान होनहार पंजाब का कलाकार के एक्सीडेंट हुए, दीप सिद्धू की, ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर चले अपन, उसकी पृष्ठभूमि और एक्सीडेंट के संदर्भ में जांच के लिए। अगर पंजाब के संदर्भ में आप ईमानदारी रखना चाहते हो तो हमको चलकर जांच के लिए करना चाहिए। आज सार्वजनिक तौर के ऊपर आप ये बात करते हो, खुद स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि हम लोग मिले जुला खेल खेल रहे हैं दिल्ली के अंदर। इस पंजाब की धरती पर आप आकर आपने एक प्रेस के कार्यक्रम के अंदर स्वीकार किया कि हाँ, हम तो मिला जुला खेल खेलना चाहते। आप क्या चाहते हो? चरणजीत सिंह चन्नी ये मिला जुला खेल खेले? ये पंजाब है या मिला जुला खेल का संस्कार नहीं है। या जो भी चीज है बड़ी ईमानदारी से, स्पष्ट और मजबूती से, ये मिला जुला खेल के लिए या कोई भी स्थान नहीं है। आज गोवा के अंदर जो कृत्य किए, मेरे साथ सहयोगी गिरीश चौनाटकर जो गोवा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी ने क्या किया, मेरे सहयोगी गिरीश चौनाटकर जी बताएंगे। और जो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, जब जब आवश्यकता पड़ी, किसी भी
पैमाने के ऊपर ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। पहले करते थे कि बिजली में दिल्ली का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जी, आओ आप मेरे से बहस करो कि पंजाब का जो बिजली का मॉडल है उसकी तुलना दिल्ली के मॉडल से करें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पंजाब के अंदर बिजली की दरें कम है या दिल्ली के अंदर दरें कम है। उन गरीबों को जिनको बिजली के बिल अदा नहीं कर सके, पंजाब में उन गरीबों को राहत मिली या दिल्ली के अंदर राहत मिली? पंजाब के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। हजारों करोड़ रुपए आपने इस बिजली के संदर्भ के अंदर अपने प्रोपेगेंडा में खर्च किए। अरविंद केजरीवाल जी बात करते हैं शिक्षा के मॉडल के अंदर हजारों शिक्षा के स्कूल के अंदर दिल्ली में क्या हालात है। हाँ वीडियो, हाँ मार्केटिंग, हाँ दावे, जरूर ये बेहतरीन शिक्षा के करते हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी की जगह कमी आई है। आज बात करते हैं स्वास्थ्य के मॉडल के लिए। स्वास्थ्य के मॉडल पूरी दुनिया देख चुकी कि दिल्ली के लोगों को जब आवश्यकता थी कोरोना के अंदर, तो पूरे के पूरा केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार जो वहां खुद दोनों मौजूद थे वो फेल हो गई। सिलेंडर की आवश्यकता थी, बेड की आवश्यकता थी, दवाइयों की आवश्यकता थी, तो दिल्ली किसको याद कर रही थी? केंद्र सरकार को नहीं याद कर रही थी क्योंकि वो फेल हो चुकी थी। राज्य सरकार को नहीं कर रही थी। कांग्रेस की एक संगठन अखिल भारतीय युवक कांग्रेस और उसके अध्यक्ष श्रीनिवासन घर घर गए जहां सरकारें फेल हुई। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता श्रीनिवासन के नेतृत्व के अंदर सिलेंडर पहुंचवाई, बेड मुहैया कराया, दवाई ये थी। ये बात करते हैं यहां आकर गारंटी की। उन गारंटियों का क्या हुआ दिल्ली के अंदर? उन्होंने गारंटी दी कि मैं दिल्ली में प्रदूषण फ्री करूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, और जब काम नहीं कर पाए अब तो आपने दोषी किसको? पंजाब के किसानों को दोष दिया कि पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं। ये बदनाम करने के अलावा, बांटने के अलावा पंजाब को आपने क्या दिया? विपक्ष की जिम्मेवारी भी इस लोकतंत्र के अंदर सरकार के बराबर होती है। 5 साल विपक्ष के तौर के ऊपर आपका क्या योगदान दिया? मैं आज ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपकी और आम आदमी पार्टी से, कि विपक्ष के तौर के ऊपर 5 साल तक सिर्फ विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन का पद और सुविधा के अलावा आपने पंजाब को क्या दिया? कब जाकर आपने केंद्र सरकार के पास जाकर पंजाब के लिए, ये विपक्ष की का भी दायित्व होता है कि जहां वह प्रमुख विपक्षी दल होता है, कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के, केंद्र सरकार के सामने जाकर अपने प्रदेश के एक बार भी आप जाकर और कुछ किया? सिर्फ स्टेज के ऊपर आपने और पार्लियामेंट के अंदर आपने चुटकुले जरूर कही, बातें जरूर कही। इस लोकतंत्र के अंदर, इस व्यवस्थाओं के अंदर उससे आगे बढ़कर बहुत चीजें होती है। आज मुख्यमंत्री का चेहरा जिनको आपने घोषित किया, 7 साल में लोकसभा के सदस्य के तौर के ऊपर आपने क्या योगदान किया? आपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंदर, और लीडर के तौर पर आपने पंजाब में क्या योगदान किया? किस स्टैंडिंग, किस कमेटी के अंदर आपने पंजाब के संदर्भ में, जो एक लोकसभा के सदस्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमेटी के मार्फत से योगदान होता है, ये मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ षड्यंत्र, विवाद, प्रोपेगेंडा। 5 साल पहले भी आपने पंजाब के जनता के सामने प्रोपेगेंडा करा अपने धन बल की ताकत से कि 100 सीटें आ रही है। रिजल्ट आते ही नैतिक जिम्मेवारी लेकर और आपको माफी मांगनी थी पंजाब की जनता से कि जो मैंने प्रोपेगेंडा किया, ऑफिशियल उनके कैंपेन का हिस्सा इन्होंने करा, पैसे देकर गलत सर्वे करवाकर धन बल की ताकत पर, और उस झूठ का प्रोपेगेंडा उन्होंने पंजाब की जनता के सामने करा, और माफी मांगने की जगह उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। फिर बात करते हैं नैतिकता की, ईमानदारी का। ये ईमानदारी का कृत्य है, और आज वापस ही
आकर आप पंजाब के बीच में इतनी हल्की बात करते हो। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार रहे। मेरा निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी मेरे साथ चलो, 18 तारीख के 5 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल जी मेरे साथ चलो, अपने आप ही भदौर और चमकौर साहब के जनता आपको बता देगी, और 5 बजे से पहले आप अपनी बात को विड्रॉ कर और माफी मांगना कि जैसे पिछली दफे 100 सीटों के बारे में बात कर देते। ये प्रोपोगंडा के माध्यम से हम लोग चुनाव नहीं लड़े, बी टीम के माध्यम से चुनाव नहीं लड़े। ये ताकतें चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ क्यों है और सब ताकतें एक शामिल क्यों है? ये तमाम ताकतें, चाहे ये बड़े पूंजीपति, जब बिजली के संदर्भ में फैसले लेने की जरूरत पड़ी तो चरणजीत सिंह चन्नी ने उन बड़े कॉर्पोरेट्स के जो बिजली की दरें का अनुबंध पंजाब में 17-18 रुपए का था वो रद्द किया, उनसे समझौता नहीं किया, और वह रद्द कर वो ताकत पंजाब की आम जनता को दी। इसलिए ये बड़े पूंजीपति अपने पूंजी की ताकत ए और बी टीम के पीछे लगा रहे। ड्रग्स के संदर्भ में चरणजीत सिंह चन्नी ने कार्रवाई करी, ये समझौता तो अलग बात, कूटनीति तो अलग बात, माफी तक मांगी अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं ने ड्रग्स के संदर्भ में विक्रम मजीठिया ने। अब पंजाब को तय करना है कि ड्रग्स के संदर्भ में विक्रम मजीठिया को माफी मांगने वाले अरविंद केजरीवाल का साथ देना है या ड्रग्स के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी का फायदा करना है। और अंधा भी ये जान सकता है कि पंजाब ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी का साथ देगा। पंजाब में अशांति फैलाने के लिए, विवाद के लिए केंद्र सरकार की साजिश का साथ देंगे या पंजाब में अमन शांति और विवाद नहीं होने वाले चरणजीत सिंह चन्नी का साथ देंगे? ये सवाल आज पंजाब के सामने खड़े हैं और 20 तारीख को इस सवालों का उत्तर देंगे पंजाब। मेरा निवेदन गिरीश चोनानकर जी से है कि जो गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो इन चुनावों में किया, उसके संदर्भ में अपनी बात हमारे पंजाब के प्रेस के मित्रों के सामने और पंजाब की जनता के सामने रखें। धन्यवाद हरीश जी। आज मैं खास गोवा से चंडीगढ़ तक आया हूं। लगभग 3000 किलोमीटर दूर पंजाब के लोगों से बात करने के लिए, जो एक हिडन एजेंडा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, जो पूरे देश में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र के रूप में ये दोनों पार्टियां लोगों को कैसे गुमराह कर रही है, ये बताने के लिए मैं खास आपके बीच में मैं उपस्थित हूं। आपको याद करना चाहता हूं मैं, आरएसएस और बीजेपी दोनों का एक कॉमन एजेंडा पूरे देश में 2014 से पहले तय किया गया था कि देश से कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा, जो घोषणा इन्होंने की थी, और उनके बाद उनके स्ट्रेटजीज में बहुत बदलाव आ गया। उनको पता चला कि इतना ये सादा नहीं है कि इस देश से कांग्रेस को मुक्त करे, क्योंकि कांग्रेस और इस देश दोनों के आइडियोलॉजी
एक जैसी है, तो कांग्रेस को इस देश से दूर नहीं कर सकते। और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल, जो उनके टीम से ही, उनके आइडियोलॉजी से ही प्रेरित होके उनसे जुल्म कर काम कर रहा था, उनका और एक चेहरा के रूप में उन्होंने आगे करना शुरू कर दिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यूथ फॉर इक्वलिटीज। अब उनके आइडियोलॉजी और आरएसएस और बीजेपी का आइडियोलॉजी अगर देखेंगे तो आपको ये कनेक्शन काफी सही लगेगा। और उसके बाद में जब प्रशांत भूषण, जिन्हें इनकी जो हिडन एजेंडा को एक्सपोज कर दिया, तो बात पूरे देश के सामने आ गई। लेकिन यह आम आदमी पार्टी, उनके जो मार्केटिंग, जो स्ट्रेटेजीज होती है, उनका सिर्फ एक ही है कि वो कैसे कांग्रेस को कमजोर करे। गोवा में वो आए 2017 के चुनाव से पहले, और कांग्रेस को कमजोर करना गोवा में उन्होंने शुरू कर दिया। जनरली कोई आप स्टेट में नए अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए जाते हैं तो आपका अटैक जो होता है वो रूलिंग के ऊपर होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ होता है। लेकिन अगर आप आम आदमी की यहां देखें तो गोवा में आके उन्होंने 2016 से कांग्रेस को अटैक करना शुरू कर दिया। 2017 के चुनाव में हम क्लियर मेजॉरिटी से जीत सकते थे, हमें 17 सीटों मिली। एक इंडिपेंडेंट जो हमने सपोर्ट किया था वो जीत के आया, हमें 18 सीटें मिली थी। हमें सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत थी। आम आदमी पार्टी ने इस तरफ से प्रोजेक्ट किया कि आज जो पंजाब में उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में काम कर रहे हैं, वैसा ही काम उन्होंने गोवा में 2016 में शुरू कर दिया। उन्होंने एक फेक सर्वे, क्योंकि आम आदमी पार्टी फेक सर्वे, वो फेक फोटोज जो फोटोशॉप करके, फेक स्टिंग ऑपरेशन, ऐसे चीजों में काफी होशियार है। 2016 में उन्होंने एक फेक सर्वे करवा दिया और उन्होंने प्रोजेक्शन दे दिया कि 35% वोट शेयर और 23 असेंबली सीट्स वो लेके आएंगे। और काफी लोग, जैसे आज पंजाब में स्थिति है वैसी ही स्थिति उन्होंने गोवा में कर दी। अंत में 2017 में सत्य सामने आया। 2017 में जब चुनाव का रिजल्ट, नतीजा आ गया, तो जो 35% वोट शेयर की बात कर रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, वीडियोस कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, हकीकत सामने आया, चुनाव के नतीजे सामने आए और आम आदमी को सिर्फ 6% वोट उन्होंने लिया। उन्होंने 23 सीट की बात की थी, उनको 0 सीट मिला। लेकिन उन्होंने बीजेपी को मदद की। उनका तो एजेंडा था वो गोवा में सरकार बनाने का नहीं था, उनको वो कांग्रेस की वोट काटने का था, कांग्रेस की सीटें काटने की थी और बीजेपी को मदद करने की थी। और हमारे 4 सीटें आम आदमी के वजह से हम लूज हो गए। एक सीट तो हम 140 वोट से हार गए और आम आदमी का कैंडिडेट को 243 वोट्स। और एक पणजी का सीट, वो तो पहले तो मारमुगांव का सीट था, हम 140 वोट से हारे। पणजी का सीट हम 700 वोट से हारे, आम आदमी का कैंडिडेट को 1400 वोट। ऐसे करके और 2 सीट, नहीं तो
अगर आम आदमी पार्टी गोवा में इलेक्शन नहीं लड़ती तो हम कम से कम 22 सीट लेके हमारा सरकार बन। सो ये बात मैं आज पंजाब वासियों को बताने के लिए इधर आया हूं। तो आप अलर्ट रहिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये छोटा मियाँ और बड़ा मियाँ दोनों कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज करते हैं, वो लोगों को तक पहुंचते भी नहीं। नितिन गडकरी ने गोवा के चुनाव से पहले एक मीडिया में एडमिट कर दिया कि गोवा में आम आदमी पार्टी के वजह से हम जीत जाएंगे। वो आम आदमी पार्टी हमारा कांग्रेस का वोट काटेगा और हमें मदद करेगा। परसों में इधर आने से पहले जब हमने पत्रकार परिषद लिया और लोगों का धन्यवाद दिया तो पत्रकार ने हमें पूछे कि आप कितने सीट लेके आएंगे। तो हमें गोवा के लोगों पर विश्वास था कि गोवा के लोगों ने देखा था 2017 में आम आदमी के वजह से हम कैसे हारे। तो इस बार गोवा के लोग एकदम अलर्ट थे, उन्होंने आम आदमी को ट्रैक्शन नहीं दिया और इस वजह से हम गोवा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमने 24 से 26 सीट लोगों को बोले। और कल बीजेपी के अध्यक्ष हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो दिन के बाद कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि ऐसा नहीं होगा, बीजेपी पूर्ण बहुमत से 22 सीट लेके सत्ता में आएंगे। ये सदानंद तनावड़े जो बीजेपी के गोवा के अध्यक्ष है वो बोल रहे। पत्रकारों ने उनको पूछा आप कैसे ये दावा कर सकते हैं। वो बोल रहे कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस के वोट काटेंगे और हम 22 सीट लेके। सो बीजेपी को अपने ऊपर भरोसा उठ गया है। बीजेपी की स्ट्रेंथ के भरोसे पे वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, उनका भरोसा है आम आदमी पार्टी पे ज्यादा। तो इधर भी उनका यही है। और मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि अभी 3-4 दिन बचे हैं। गोवा में भी जब साइलेंट पीरियड स्टार्ट हो गया, साइलेंट पीरियड जब चुनाव से 48 घंटे होते हैं तो उसके बाद उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन रिलीज करके गोवा के लोगों को गुमराह करने के लिए वो फेक स्टिंग ऑपरेशन रिलीज करके बाद में हमको मौका भी नहीं मिला कि काउंटर करने के लिए। लेकिन गोवा के लोग सतर्क थे, हमने उनको अलर्ट किया था। आज भी मैं पंजाब में यही बात लेके आया कि अगले 3-4 दिन में ये लोग और कौन सी नौटंकी करेंगे, इनके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर ये किसी चीज को सामने लाएंगे तो पंजाब को लोगों को 2 बार सोचना पड़ेगा ये चीज क्या है। उनके ऊपर आप जाने के लिए जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि जब ये दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती खेल रही है तो आप अगर देखेंगे कि लास्ट 32 मंथ्स और लास्ट 38 स्पीचेस अगर आप केजरीवाल की देखेंगे तो उनके मुंह से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आता है। अगर आप विरोधी पार्टी का रोल कर रहे हैं इस देश में तो आपका अटैक प्राइम मिनिस्टर पे होना चाहिए। और इसलिए इनका जो दोनों का मैच फिक्सिंग चल रहा है उसको हम अलर्ट हमें रहना पड़ेगा। सो यही बात मैं करने आज आया हूं। आपका वोट बीजेपी या अकाली दल या आम आदमी को किसी को भी जाएगा तो वो वोट बीजेपी को जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करने आया हूं पंजाब को लोगों को कि आप जो अच्छा सरकार हमारी सरकार ने दिया है आप किसी के बहकाव में नहीं आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जब केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार जहां फेल हुई कोरोना के वक्त में, एक संगठन अखिल भारतीय युवक कांग्रेस और उसके अध्यक्ष श्रीनिवासन जी ने दिल्ली के हर व्यक्ति को उस वक्त मदद करी। सिर्फ हम लोगों ने
प्रोपेगेंडा और भाषण के माध्यम से ये बात नहीं कह रहे हैं। हर व्यक्ति दिल्ली में जानता है कि जब भी याद किया गया तो केंद्र सरकार को और दिल्ली की सरकार को याद नहीं किया गया, श्रीनिवासन और यूथ कांग्रेस को याद किया गया। और उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी दिल्ली के हर नागरिक की मदद करी जब दिल्ली की सरकार फेल हो गई थी, क्योंकि दिल्ली की सरकार की ताकत को सिर्फ पब्लिसिटी के अंदर और प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीनिवासन जी को कि अपनी बात पंजाब के लोगों के बीच में प्रेस के मित्रों के माध्यम से रखें, ब्रीफ में। आप सबको पता है जो आजकल पंजाब में दिल्ली मॉडल काफ़ी सुनने को मिल रहा है। जो इनका इवेंट मॉडल बोल सकता हूँ मैं, दिल्ली मॉडल नहीं, ये इवेंट कैसे करना ये अच्छी तरह से इनको केजरीवाल जी जानता है। जब कोरोना वेव वन में जो माइग्रेंट लोग अपने अपने घर निकल रहे थे, तब केजरीवाल कहाँ था, आप लोग भी दिखाए थे। उस समय में लोग इतने परेशान हो के जो घर निकल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे बिना चप्पल, ऐसे ऐसे तस्वीर जिंदगी में देखने को नहीं मिला। जो प्रेग्नेंट लेडी लोग पैदल जा रहे थे, तब पानी तक नहीं पिलाने का सोच नहीं था। ये आम आदमी पार्टी का, इनका सरकार दिल्ली में थे, किस तरीके के लोग परेशान था। तब कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरा दिल्ली में चारों बॉर्डर पे जो लोग आते थे उनको खाना खिलाने से लेके तमाम चीज़ें उनको मदद करना, उनको घर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करना। जब राहुल गांधी जी 12 फरवरी को ट्वीट लगा के इस कोरोना महामारी के बारे में बताया, तभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को जो राहुल जी ने जो संदेश दिया था, आप सब लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम सारे बंद करके जो लोगों को सेवा करने का जो, तो उसी हिसाब से हम लोग ने जो मास्क बांटने का काम हम लोग ने पहला वेव में स्टार्ट किया। मास्क पहनो इंडिया कार्यक्रम यूथ कांग्रेस ने स्टार्ट किया। 1 करोड़ मास्क दिल्ली में बांटने का काम कोई किया, वो यूथ कांग्रेस ने किया। ये सारी बात आपने भी लिखा था उस समय में। ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल उनके सरकार को भी पता था यूथ कांग्रेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। जो माइग्रेंट लोग जो गारमेंट्स में जो काम करता था, ऐसे लोग जो जॉब लॉस हुआ था, ऐसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमने रॉ मटेरियल दे के उन लोग से मास्क सिला के लोगों को पहनाने का काम किया। और उसके बाद में जो 8 महीने गैप था, 8 महीने गैप में जो पहले ही इनको पता था कितने वेव 1 में लोग परेशान था, हॉस्पिटल को भर्ती लेने के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज था उस समय में भी, तब भी ये सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, जो इवेंट मॉडल है इनका, कभी कोशिश नहीं किया ज़्यादा हमने बेड बढ़ाना है। पूरा दुनिया का लोग कह रहे थे वेव 2 आ सकता है, बट जो दिल्ली में जो केंद्र सरकार हो, आम आदमी पार्टी सरकार हो, दोनों कभी इस बात को सीरियस नहीं लिया। मार्च 7 तारीख भारतीय युवा कांग्रेस का जो कार्यालय में नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ, उसमें राहुल गांधी जी अभी प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल ऑफिस बेरर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया। जो वेव 1 में हम लोग ने जो 600 लोग जो कोरोना वॉरियर टीम बना के जो काम किया था, पूरा देश में बढ़ाने के लिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और सबसे ज़्यादा फोकस दिल्ली में करने के लिए पूरा जो आदेश दिया था, आदेश अनुसार हम लोग ने डॉक्टर से बात किया। जो इन लोग ने एक लोगों को जो प्लाज्मा नहीं दिला पाया, इनके पास कोई आंकड़ा भी सही नहीं था। क्यों? तो दिल्ली में
कितने लोगों को कोरोना आए, कितने लोगों को ठीक हुआ, उसके 15 दिन के बाद में किस किस के बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हुआ है। वो 18 साल से 60 साल तक कोई व्यक्ति 3 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते थे। लोग प्लाज्मा के लिए किस तरीके के पूरा सड़क पे घूम रहे थे, उस पे किस लेवल पे लोग 10,000, 20,000, 50,000 का जो ब्लॉक में लोग सेल कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, तब भी 10,000 का लिस्ट हमने जोन वाइज हम लोग ने सोशल मीडिया पे हम लोग ने लगाया। जो भी प्लाज्मा जरूरत है इस कांटेक्ट नंबर में कांटेक्ट करने के लिए दिल्ली में तमाम जगह हम लोग ने जो कोरोना होके क्लियर हो गया, नेगेटिव हो गया, उन लोगों का लिस्ट यूथ कांग्रेस ने 10,000 लोग का कलेक्ट करके प्रोवाइड करने का काम किया। दुनिया में सबसे पहले जो ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से जो लोग मरे, खुद डॉक्टर मरे, सुनने को मिला, वो दिल्ली में मिला और कहीं नहीं मिला दुनिया में। दिल्ली में इनके पास जो ऑक्सीजन का इन्होंने जो पेशेंट को और डॉक्टर को इन लोग ने मैनेज नहीं कर पाया, उस समय में कोर्ट पे क्या बोला इनको, आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो कोर्ट से इनको डायरेक्शन मिला, आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने का बात ये कोर्ट ने बोला है, ये बात हम नहीं कह रहे। जो एवरी 10 सेकंड दिल्ली में आप किसी को भी पूछ सकता है। आज भी मेरे को मेरा आंखों के सामने उस दिन कैसे लोग अपने जान बचाने के लिए सड़क पे घूम रहे थे। जो हॉस्पिटल के भर्ती के इनको ऑनलाइन सिस्टम बनाया था, कौन से हॉस्पिटल में कितना हॉस्पिटल जो बेड अवेलेबल है, वेंटिलेटर बेड कितना है, ऑक्सीजन बेड कितना है, जो इनका सिस्टम चलता था वो एकदम फेक जो डेटा चलाते थे। क्यों? दिल्ली का जनता उस डेटा को देख के गाड़ी और एम्बुलेंस बना के लेके उस हॉस्पिटल के बाहर जाता था, वहां 50 लोग 100 लोग लाइन पे खड़े रहते थे। इनके पास वो एग्जाम्पल इनको छोटे चीज को लोगों को सही नहीं बता पाया। इनका जो कॉल सेंटर था, कोई उस कॉल सेंटर पे कोई एक फोन नहीं उठाता था। 1-1 घंटा 2-2 घंटा लाइन में लोग फोन जो भी किया है वो वेट करना पड़ता था, उसके अंदर जान चले जाता था। एलएनजेपी के हॉस्पिटल के बाहर मैं खुद गवाह हूं, जो 21 साल का लड़का जो किस तरीके के 2 दिन से हॉस्पिटल भर्ती के लिए जो पूरा दिल्ली घूम घूम के एलएनजेपी के बाहर आए। पत्रकार आप साथी हिंदुस्तान टाइम मेरे को फोन किया, मैं पहुंचे वहां। हमने अंबेडकर हॉस्पिटल में एक बेड अरेंज किया रोहिणी में, तब के अंदर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से उनको शिफ्ट करने के अंदर वो दम तोड़ा। इस तरीके का जो मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, टोटली उनको कोई भगवान के ऊपर हाथ खड़े करके छोड़ दिया। कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं बोलेंगे, अपने सुरक्षा देखेंगे। जो इंजेक्शन डॉक्टर उस समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखता था, पूरा दिल्ली में एक ही जगह अवेलेबल था। जो आर्टिकल्स में एक जगह, वो भी सूर्या से लेके हर जगह दिल्ली मॉडल कह रहा है। मैं उस समय में जो इन लोग ने मिसमैनेजमेंट किया, वो वास्तुअंश भी पता होना चाहिए क्या किया इन लोग ने। मैं उसी बारे में बता रहा था। चलो, आप कोई सवाल, आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो? एक मॉडरेट करें। हाँ जी, क्या किया इन लोग ने, मैं उसी बारे में बता रहा था। चलो, आप कोई सवाल, आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो? एक मॉडरेट करें। हाँ जी।